Most people think ego means arrogance, money, success, power, fame. But let me dive deep in. Spiritual ego जो होता है वो बहुत detrimental होता है towards health. Why? Because usually it is relatable to the most significant impact of the human, that is कि यार it has nothing to do with the layers of justice, but at the same time it is a part of someone which could actually make a new identity, and you can't even see it. See, the power of spiritual ego is something which is far more beyond your imagination. Why? Because usually जब लोग बहुत आध्यात्मिक बल से ऊपर चढ़ते हैं अपनी स्पिरिचुअल टेंडेंसी से, अपने गुरु के कृपा से, माध्यम से, तो होता क्या है कि लोग हमेशा ये सोचने लगते हैं कि यार मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ, बट धीरे धीरे दे स्टार्ट बिल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ tendency to have more, be greater than others, like the rudimentary, the basic is actually lifted from that fact in your perspective कि I am better than others. And the worst part is that is the first most fundamental basics of bhakti, to dissolve the ego. See, in the end, when the ego is shattered, then only you understand what bhakti is. तो स्पिरिचुअल ईगो इज समथिंग विच यू नीड टू बी कॉन्कर्ड अपॉन. एंड यूजुअली भक्ति में भी बहुत सारे सेंट्स, बहुत सारे गुरुज यही कहते हैं कि आपके अंदर का जो अहंकार है उसको नष्ट करना और उसकी पुष्टि करना आपका ही उसमें रोल है, कि आप ही उसको देख सकते हो कि कहाँ वो बढ़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई बाहर गरीब चल रहा है और आप उसकी मदद कर रहे हो, चाहे उसको आप पैसे दे रहे हो, चाहे उसको आप खाना खिला रहे हो, दैट डजेंट मैटर. उसमें दो भाव हैं, दो इंटेंशंस हैं. एक आपने करके आप भूल गए, दूसरा आप कर रहे हो और आप अंदर सोच रहे हो कि वाह मैं कितना बढ़िया काम कर रहा हूँ. भूलना मत दैट वो काम भी भगवान से ही कराया जा रहा है. इन द सेल्फ रियलाइजेशन इट इज निष्काम भाव. सी, the most important factor is to understand that thin layer of ego and that turbulence which is happening in your mind, trying to make you feel superior than others and making you validate that through others that you are different, that is bad. वो गलत चीज़ है. Why? Because in Radha Bhav, in Krishna Bhav, in Vaishnav Bhav, that is all seen as a pure devotion form of iridescent. Why? Because you don't need to have a lot of colors. You just need to be formed into that piousness, into that purity of nothingness. As I said in my earlier video as well, जो गुरुज होते हैं, जो महाप्रभु थे, जैसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनको वंशी अवतार कहा गया इसलिए क्योंकि वो एक हॉलोड फॉर्म जो कृष्ण भगवान की फ्लूट थी, that had only the breath of Krishna inside the flute. That is why it is used to play that melodious tunes and make everybody feel loved and cherished. And वो spiritual dimension लोगों की मन से बदलती थी. भगवान के मधुर फ्लूट से जो वो ट्यून्स निकलती थी, मेलोडीज निकलती थी, that used to make people feel you know ego is diminished and love is you know perpetrated into something more greater. So conspicuously what I'm trying to say is that you need to understand that ego is something and spiritual ego is something. Why? Because ego आप फिर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्पिरिचुअल ईगो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. क्योंकि कभी कभी वो चीज़ इंसान ये सोचने लगता है कि भाई मैं लोगों से ग्रेटर हूँ बिकॉज मैं ज़्यादा सीख गया हूँ. नहीं, ये कभी भी नहीं सोचना है. वहीं से सारी की सारी आपकी जो पावर्स हैं वो डिमिनिश होने लग जाएंगी, वो ख़त्म होने लग जाएंगी, वो डिटीरिएट होने लग जाएंगी. एलिविएट नहीं करना है चीज़ों को. अगर चीज़ को आपको रेडिएट करना है हायर लेवल पे, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द पावर ऑफ nothingness is devotion. Then only you can understand something and put inside your body. What they say in usually, like Sadhguru भी जो है वो क्या कहते हैं, I don't know anything. If you start with that kind of phrase in your life, now I don't know anything, even if you know a lot of things, then only abundance enters.
देखो जब कमरा खाली होता है उसमें आप फर्नीचर डालते हो, उसकी ब्यूटी बढ़ती है ना। लेकिन जब कमरा पूरा खाली होता है तो उसमें कितने सारे गुण होते हैं कि आप इसमें अलमारी लगा सकते हो, आप वॉल पे ये कर सकते हो, आप ऊपर। सो इट हैज़ द पावर टू इवॉल्व, राइट? दैट इज़ वाई इवॉल्व होना आसान नहीं है। आपको अपने अंदर झांकना ज़रूरी है कि आप कहाँ पे इंटेंशनली उस चीज़ को अपने अंदर बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। जब आपको जहाँ ऐसे मोड़ पे लग रहा है लाइफ के कि यार ये चीज़ जो है ना करके मुझे अच्छा फील तो हो रहा है, लेकिन मुझे एक प्राइड महसूस हो रही है कि मेरे से बेटर कोई नहीं है। इवन इफ यू कैन आइडेंटिफाई दैट विद अवेयरनेस, देन यू आर ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। अगर आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो और दूसरे भाव को आप कह देते हो, जैसे लेट्स से यू डिड समथिंग एंड दो जगहों पे आपको एक एक पॉइंट पे, क्योंकि दिमाग इज लाइक फॉर्म ऑफ सो मेनी फेसेस एज वी से। सो एक जगह आपको ऐसा लग सकता है यार मैंने बहुत अच्छा काम किया, एक जगह आपको ये भी ऐसा लग सकता है यू बिकमिंग अ स्केप गोट, लाइक मैं तो हर चीज़ जो भी करता हूँ वो तो बहुत ही बढ़िया होती है, या फिर जो मैं चीज़ करता हूँ भगवान के प्रेम के लिए करता हूँ। सी कितना फ़र्क है दोनों चीज़ में, एकदम से भाव बदल गया। सो ये चीज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी है विद अवेयरनेस, एंड उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। अगर आप इग्नोर करोगे दैट मीन्स यू शैटरिंग योरसेल्फ। आपने वहीं अपनी आइडेंटिटी को और पुष्ट कर दिया, और हमें अपनी आइडेंटिटी को कम करना है। यही एक बहुत बड़ा लेसन है जो स्पिरिचुअल ईगो आपको बहुत सारी प्राइड देता है, आपको इग्नोरेंस देता है, ना कि आपको भक्ति प्रदान करता है। So that is why I wanted to make a video on this to make people understand that everybody can go through this. It doesn't matter. You are a human after all. But at the same time, make sure that there's a check on this awareness के साथ with full concentration and mindfulness. अगर ये होगा आपके अंदर तो then आप कभी भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके हटा सकते हो। अदरवाइज आप हटाने की कोशिश अगर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ मैं अपने अंदर थोड़ी तो रखूँ, नहीं रखने। जस्ट flow through it, एंड विद टाइम यूल अंडरस्टैंड दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट जब आपने उस चीज़ को शाटर किया, जब आपने उस चीज़ पे हैमर करके नेल मारा ऐसे करके, तो वो अंदर गई चीज़, इट मेड यू into something different which you are today. So I just wanted to share this with everyone that keep a check on this, and जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। एंड जब भी आप लोगों को इस चीज़ में ऐसा लगे कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो और उसमें अगर आपको दो फेस आ रहे हैं, एक फेस तो ऐसा होगा कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया, या भगवान की कृपा से जो हुआ भगवान ने ही कराया। इट्स अ डिफरेंस, यू सी, जस्ट अ स्लाइट बट it can make you so transcendental. So thank you everyone for watching this video, and I hope you understand what is the difference between spiritual ego and love. Jai Jai Shri Radha, Jai Shri Ram, Jai Hanuman.